وہ کیونکہ میری عمر سے چھوٹے نظر آ رہے ہیں، اس لیے میں یہ گزارش کروں گا، اپنے چھوٹوں سے تو کر سکتا ہوں، بڑوں سے تو ہمت نہیں کر سکتا، کہ ایک دو صف آپ میڈیا کے لیے چھوڑ دیں، جو کیمرہ مین یہاں ہیں اور جو خبریں لکھ رہے ہیں اور بنا رہے ہیں، ان کے لیے یہ سائیڈ اگر آپ تھوڑی سی اپنے مہمانوں کو دے دیں گے تو یہ بڑا کرم ہوگا۔ یہ ہم نے تو سیکھا ہی ان محفلوں سے یہ ہے کہ اپنے مہمان کو جگہ دیجئے، اپنے دل میں جگہ دیجئے، اپنے ذہنوں میں جگہ دیجئے۔ پریس والے ہمارے معاون ہیں، اس محفل کو پوری دنیا میں پہنچائیں گے، اور یہی ہمارا اس محفل سے مقصد بھی ہے کہ ہم دہشت گردی کے خلاف امن کی آواز اٹھاتے رہیں۔ آئیے اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے میری فہرست میں جو نام نامی ہے، جس محترم خطیب کا نام ہے، ذاکر اہل بیت ہیں، حیدرآباد سے تشریف لائے ہیں، ان کے تعارف میں یہ عرض کر دوں کہ مولانا کامران حیدر صاحب اس وقت ہماری قوم میں ایک لاجواب خطیب کے طور پہ ان کا استقبال کیا جاتا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے مولانا کامران حیدر صاحب کا نام عزیز الدین تھا۔ عزیز الدین سرٹیفکیٹ نام عربی ہے، اور وہ سابق سنی حنفی رہے ہیں، لیکن تحقیق کر کے شیعہ اثنا عشری میں شامل ہوئے۔ نہایت قابل تعظیم ہے ہمارے لیے، اور آپ کی ایک کتاب رسول اللہ کا اجتہاد و خطا اجتہادی کا بے بنیاد نظریہ شائع ہوئی۔ پچھلے دنوں ایک کتاب آئی تھی جو تاریخ اسلام کے مست کردہ حقائق، یہ کسی نے کتاب لکھی، اس کا بہت مدلل جواب مولانا کامران حیدر صاحب نے اہل بیت رسول پر یزیدوں کی تہمتیں، یہ کتاب ان کی تازہ ترین شائع ہوئی ہے۔ باہر یہ کتاب جن صاحب کو چاہیے وہ لے بھی سکتے ہیں۔ میں اسی کتاب کے مصنف ذاکر اہل بیت جناب کامران حیدر صاحب، جو حیدرآباد سے ہمارے درمیان تشریف لائے ہیں، اس شہر سے تشریف لائے ہیں جس شہر کے ساتھ حیدر جڑا ہوا ہے، جس کے ساتھ آباد جڑا ہوا ہے۔ خدا آپ کو بھی آباد رکھے، حیدری نعروں کے ساتھ ان کا استقبال کیجئے۔ میں درخواست کر رہا ہوں جناب کامران حیدر صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں، اور آپ سے درخواست کر رہا ہوں کہ ان کا نعرہ حیدری کے ساتھ اور نعرہ سلوات کے ساتھ استقبال کریں۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ سلوات۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، ابی القاسم محمد۔ کامران بھائی 1 منٹ کے لیے مائک والوں سے میری درخواست ہے اس کا والیوم بڑھا دیں تھوڑا سا۔ والصلاة والسلام علی اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس اہل البیت ویطہرہم تطہیرا۔ ولعنت اللہ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم وغاصبی حقوق مجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ گزار محفل اور رونق مسند و زینت مسند، علماء، خطباء و شعراء کرام، میں نے جس آیہ کریمہ کو پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، یہ بڑی ہی مشہور و معروف آیت، اور ایسی آیت کہ ہر کلمہ کو کوئی آیت یاد ہے۔ میں فی الفور اس کا ترجمہ نہیں کروں گا، اس لیے کہ ترجمہ سب کے ذہن میں ہے، لیکن مجھے نہیں معلوم کہ کس کے ذہن میں اس کا کیا ترجمہ ہے۔ اور ایک جملہ عرض کر دوں کہ قرآن کا ترجمہ جو مترجم کرتا ہے، دراصل قرآن کا ترجمہ اپنے عقیدے کی ترجمانی ہے۔ قرآن کے ترجمے سے عقیدے کا پتہ چلتا ہے کہ کس کا کیا عقیدہ ہے، ترجمہ عقیدے کی روشنی میں کیا گیا ہے۔ تو آپ ترجمے کو عقیدے کی ترجمانی میں دیکھیے، اور ترجمانی کو عقیدے کے ترجمانی کو قرآن کے ترجمے میں پڑھیے۔ تو کسی نے اس کا ترجمہ کیا کہ پروردگارہ ہمیں سیدھی راہ دکھا۔
ये दिखा का मतलब ये हुआ कि अब तक रास्ता दिखाया नहीं गया, तभी तो दुआ की जा रही है। और किसी ने तर्जुमा ये किया कि हमें सीधा रास्ता चला, तो मतलब ये हुआ राह दिखाने वाला तो आ गया, लेकिन राह पर चला नहीं रहा है, तभी तो दुआ की जा रही है कि राह पर चला। क्या कहने? तो अब ये दोनों बातें गलत होंगी। राह दिखा वो कह सकता है कि जिसके पास ये अकीदा हो कि भी राह दिखाने वाला नहीं आया, जबकि सरकार खत्मी मर्तबत के बाद अब किसी राह दिखाने वाले नबी की ज़रूरत है नहीं, कोई नबी नहीं, आखिरी नबी है। तो फिर हम कैसे दुआ कर सकते हैं कि राह दिखा? और जिसने ये तर्जुमा किया राह चला, तो उसका मकसद ये हुआ कि नबी तो आ चुका है मगर रास्ता नहीं दिखाता, ये भी गलत। तो अब तीसरा तर्जुमा ये रह जाता है कि राह दिखाई जा चुकी है, राह पे चलाने वाला आ चुका है, और जिस राह पे आप चल रहे हैं उस पर कायम रहने की दुआ कीजिए, साबित कदम रहने की दुआ कीजिए। और जब इस मंजिल पर आकर हम तर्जुमा कुरान गौर करते हैं तो मौलाना अशरफ अली थानवी ने तर्जुमा किया था राह दिखा, मौलाना मौदूदी ने तर्जुमा किया था राह चला, लेकिन मौलाना फरमान अली साहब क़िबला ने फरमान अली की रोशनी में तर्जुमा किया। में तर्जुमा किया कि परवरदिगारा हमें साबित कदम रख। और मौलाना मकबूल अहमद साहब क़िबला ने तर्जुमा किया जो बारगाह रिसालत का मकबूल तर्जुमा हो गया। बारगाह रिसालत का मकबूल तर्जुमा हुआ कि हमें सीधे रास्ते पर कायम रख। अब ये बड़ी तवज्जो चाहूंगा इस एक लफ्ज के जरिए कि सीधे रास्ते पर कायम रख। ये कायम रख वही कह सकता है जिसके अकीदे में कोई कायम हो। उसके लिए कहा जा रहा है जिसके पास कायम है, उस कायम के होने की वजह से साबित कदमी का रास्ता मांगा जा रहा है, यानी बेहद के कायम रख। तो मालूम ये हुआ हिदायत पर वही कायम है जिसके पास कायम है। सलावत पढ़े मोहम्मद। अब ये है कि वो कायम है तो कहाँ है, क्या कर रहे हैं? गायब है, इमाम गायब है तो कर क्या रहे हैं? तो किसी चीज के लिए ना होना, किसी चीज का नजर ना आना उसके ना होने की दलील नहीं होता है। इसलिए उलमा कहते हैं, कायदा मशहूर है, अदमुल विजदान ला यदुल्लु अला अदमिल वजूद। किसी चीज का नहीं होना उसके ना होने की दलील नहीं है। फरिश्ते नजर नहीं आते, किसी चीज का मालूम ना होना उसके हकीकतन ना होने की दलील नहीं होता है। तो अज़ीज़ान गिरामी, फरिश्ते नजर नहीं आते, फरिश्ते गायब हैं, तो क्या कोई ये पूछ सकता है ये कौन सा अकीदा है? फरिश्ते गायब हैं तो कर क्या रहे हैं? तो जैसे फरिश्ते गायब हैं तो गायब पर यकीन है, उसी तरीके से कायम पर यकीन रखिए कि वो भी है, वो भी मौजूद है। और वो क्यों मौजूद है? इसलिए कि अल्लाह ने उसे इसलिए कायम रखा है कि जब तक जमीन पर जुल्म करने वाले जुल्म करते रहे तौबा की मोहलत दे दी जाए, लेकिन जब हद आखिर की बात हो जाएगी, मोहलत खत्म हो जाएगी, तो वो आने वाला आएगा और आने के बाद जमीन ने जुल्म को अदल से भर देगा। इसलिए दुआ की जाती है, पालने वाले हमें कायम के रास्ते पर रख, सीधा रास्ते पर कायम फरमा। अब ये यहाँ पर थोड़ी देर के लिए मैं सरकारी वली असर की निस्बत से गुफ्तगू करूँ आपके सामने कि इमाम गायब के वजूद की दलील के सिलसिले में किताबें भरी पड़ी हैं। कम से कम सिरातुस सगी फी अहवाल महदी जो मौलाना सिक्तैन साहब क़िबला की है, वो इतनी मारूफ किताब है कि उस किताब के पढ़ने के बाद किसी की ज़रूरत नहीं है कि जो दलाइल दिए जाए। लेकिन कॉमन सेंस के लिए मैं आम जहनों को मुतवज्जे करने के लिए एक बात कहना चाहूँगा। वो बात यह है कि इंसानी वजूद से जिस तरीके से वजूद परवरदिगार पर दलील पेश की जाती है कि तुम्हारा होना ही इस बात की दलील है कि तो कोई तुम्हारा पैदा करने वाला है, किसी का होना ही इस बात की दलील है कि कोई उसका पैदा करने वाला, यानी मसनू दलील है साने की, मखलूक दलील है खालिक की, मौजूद दलील है मूजिद की।
अगर मूजिद ना होता तो कोई मौजूद ना होता, साने ना होता तो कोई मसनू ना होता, खालिक ना होता तो कोई मखलूक ना होता। तो हमारे होने से ही पता चला ना कि कोई है। तो जबकि अजीज़ान गिरामी, जिस वजूद से अल्लाह पर दलील पेश की जाती है कि इंसान का जीता जागता वजूद कह रहा है कि कोई उसका बनाने वाला खालिक है, उसी तरीके से इंसानी वजूद से इस बात की दलील मिलती है कि कोई इमाम गायब भी है, और उसकी गैबत का अकीदा भी इंसानी वजूद की दलील से मिलता है। आप हैरत ज़दा हो जाएंगे कि मैं इस स्टेज से इंसानी वजूद से गैबत ईमान की कैसी दलील दे रहा हूँ। तो बस 2-4 जुमले अर्ज करूँ बिल्कुल नए अंदाज में। इंशाअल्लाह बुजुर्ग उलमा अगर उनकी खिदमत में उनके सामने किसी नए ज़ाविये फिक्र से गैबत इमाम पर दलील सामने आएगी तो वो मेरे हक में दुआ करेंगे। क्या अज़ीज़ान गिरामी गौर फरमाएं कि इंसान के होने से इस बात का पता चला कि ये शय है तो मतलब इसका कोई बनाने वाला है। अब आइए, इंसानी वजूद से गैबत इमाम की दलील आपको मिलती है, वो इस तरीके से मिलती है कि कान है तो कान के लिए समात हाजिर है। मैं आपसे अर्ज करूं कि इंसान को अल्लाह ने जो हवास दिया है उसमें मशहूर हवास खमसा यानी बोलना, सुनना, चखना, सूंघना और इदराक, ये तमाम चीज़ों को गौर करते हुए आप चले तो आपको मालूम होगा अल्लाह ने एक अज़्वे बदन को, जिस्म के एक हिस्से को जो चीज़ दी है दूसरे हिस्से को नहीं दी। तो जिसको नहीं दी उसके लिए गायब है और जिसको दी है उसके लिए हाजिर है। मसलन आँख है, आँख के लिए देखना हाजिर है, कान के लिए देखना हाजिर नहीं, गायब है। कान के लिए सुनना हाजिर है मगर आँख के लिए सुनना हाजिर नहीं, गायब है। हाथ के लिए छूना हाजिर है मगर नाक के लिए छूना हाजिर नहीं, सूंघना हाजिर है। तो जो एक अज़ू के लिए हाजिर है दूसरे अज़ू के लिए गायब है। यानी कान के लिए समात हाजिर, आँख के लिए गायब, आँख के लिए बसारत हाजिर, कान के लिए बसारत गायब। ज़बान के लिए जायका चखना हाजिर मगर नाक से जायके का मतलब गायब। नाक से सूंघना हाजिर लेकिन ज़बान से वही हिस्सा गायब है। तो एक हिस्से अज़ू से दूसरे हिस्से को दौड़ते चले जाएं तो मालूम ये होता है कि एक अज़ू के लिए जो चीज़ हाजिर है वही दूसरे के लिए गायब है। मगर आप तवज्जो ये फरमाइएगा कि कान के लिए जो हाजिर आवाज़ है आँख के लिए गायब है मगर आँख को कान पर एतमाद है, कान को आँख पर भरोसा हो रहा है। ये कान को आँख पर भरोसा क्यों हो रहा है कि एक के लिए जो हाजिर दूसरे के लिए गायब। तो कान के लिए आवाज़ हाजिर, आँख के लिए गायब मगर आँख को भरोसा कान पर, कान को भरोसा आँख पर, और इसी तरीके से चखने को भरोसा सूंघने पर, छूंघने का भरोसा है बोलने पर। तो इसी तरीके से आप गौर करते चले जाएं तो और आसान कर दूं अपने हमसिन और कमसिन भाइयों के लिए कि अज़ीज़ान गिरामी, कान हाजिर है मगर आवाज गायब है, आंख हाजिर है मगर देखना गायब है। ये देखना गायब क्यों कह रहा हूं? इसलिए कि बहुत सी आंखें हैं जो चर्बी के ढेला हुआ लिए रहती हैं मगर उसमें रोशनी नहीं होती। तो आंख नजर आती है, रोशनी नजर नहीं आती। आंख नजर आती है, रोशनी नजर नहीं आती। आंख हाजिर है, बसारत गायब है। लोग कान को तो देखते हैं, आवाज को नहीं देखते। लोग दिमाग को तो देखते हैं, जहन को नहीं देखते। लोग जबान को तो देखते हैं, गोयाई को नहीं देखते। यानी जबान हाजिर है, गोयाई गायब है। कान हाजिर है, आवाज गायब है। बदन हाजिर है, रूह गायब है। दिमाग हाजिर है, शऊर गायब है। दिमाग हाजिर है, ख्याल गायब है। दिमाग हाजिर है, हाफिजा गायब है। दिमाग हाजिर है, वहम गायब है। इनमें कुछ नजर नहीं आता मगर है कोई दुनिया का ऐसा इंसान जो अपने हाफिजे पर यकीन न रखे, जो अपने वहम को न माने, जो अपने ख्याल को न माने, जो अपने शऊर को न माने। कान नजर आता है, बसारत नहीं। आंख नजर आती है, बसारत नजर नहीं आती। कान नजर आता है, समात आवाज नजर नहीं आती। तो जब हर इंसान के वजूद में अल्लाह ने ऐसी कुव्वत को रखा है कि वो एक दूसरे के गैब पर यकीन रखती है। अब अगर ये जिस्म बदन यानी निज़ाम बदन को अल्लाह ने ऐसा बनाया, एक अज़ो दूसरे अज़ो की गैबत पर यकीन रखे। अगर यकीन नहीं रखेगा दिमाग हट जाएगा, बसारत काम नहीं करेगी, जिस्म का निज़ाम फेल हो जाएगा। तो अल्लाह ने निज़ाम जिस्मानी को बचाने के लिए एक गैबी कुव्वत को रखा है, जिस गैबी कुव्वत पर सारे जिस्म का इन्हिसार है। तो सोचने की बात है, अगर ये जिस्म अपने गैब पर भरोसा ना करे, यानी हाथ गैब पर यकीन ना करे, कान आवाज पे यकीन ना करे, आंख बसारत पे यकीन ना करे, जबान गोयाई का साथ ना
बना दे, सब गैब के साथ जुड़े हुए हैं। अगर ये एक दूसरे का ताउन ना करे तो निजाम बदन बिगड़ जाए। तो सोचो कि अल्लाह ने फानी जिस्म के लिए एक गैबी कुव्वत का यकीन दिया है, तो जो बाकी रहने वाला दीन है, अगर उसकी हिफाजत के लिए गैबत में इमाम को, इमाम गायब को रखा है, तो सोचने की क्या बात है, हैरत की क्या बात है। इसलिए यकीन रखना पड़ेगा कि जैसे तुम्हारा जहन हाजिर है, तुम्हारी आंख हाजिर है, तुम्हारी आवाज हाजिर है,